Good morning, students. Today we are going to discuss about various computer threats, which is also a part of our Unit 4, that means our networking unit. So, first of all, talking about computer security. Computer security is very important because it keeps our information protected. एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर्स ओवरऑल हेल्थ, यानी कि हमें हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करके रखना होता है बिकॉज कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है इट शुड नॉट गेट रिवील्ड. एंड प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी विल हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर्स. अगर हमने अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली सिक्योर किया है दैन हमारे कंप्यूटर्स को वायरस या मालवेयर्स इन्फेक्ट नहीं कर सकते. सो वॉट हैपन्स बेसिकली योर कंप्यूटर्स बिकम्स इन्फेक्टेड from any of the softwares like virus worms, and once any kind of this malicious software enters your computer it will reside in your computer and until it gets triggered. जब तक हमें उसे पता नहीं लगा पाएंगे उसका तब तक वो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहेगा and it can harm our computer in many number of ways. So if we are protecting our computer properly from viruses and malwares, then our programs can run smoother and as well as quicker. Now talking about the malware, so the term malware, or we can say also malicious software, it is used or it is a kind of software which can infect our computers, equipment, performance, और we can say functionality as well. सो ये जो है malwares, ये एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उनकी फंक्शनैलिटी को, उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं. साथ ही साथ में हमारा जो डेटा होता है सिस्टम में उसको भी वो इनसिक्योर कर देते हैं. जो वेरियस तरह के मालवेयर्स अवेलेबल हैं जो अभी जो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दोज आर वायरस, ट्रोजन और वॉर्म्स. इसके अलावा भी देयर आर मेनी काइंड्स. These are the various kinds of malwares like virus, worms, Trojan horse and spywares. Now first talking about the virus. So basically virus is a computer program that attaches itself to another program and will and cause and it may cause damage to the computer system or to the network itself. सो वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो किसी भी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा ऑन योर कंप्यूटर एंड दैन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू अदर यूज़र्स. हमने वो फाइल अगर किसी दूसरे यूज़र को, जो इन्फेक्टेड फाइल अगर किसी दूसरे यूज़र को सेंड कर दी तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर देगा. सो अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है दैन द रिजल्ट्स आर अवर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस विल बी डिक्रीज्ड as well as it may also happens that computers functionality can be a complete loss. So हमारा या तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी और it will be a complete loss to a computer's functionality. Now this is a general example of a virus. Here we are having some original code which we have to transfer, but due to virus our codes get infected and after infection our original code will be replaced by the virus code because virus has infected this particular file, original clean code file, and virus has infected the program. So the resultant code will get, that is the virus code. Now talking about the phases of virus. During its lifetime, from its creation till its end, virus undergoes various phases. Out of this, the first phase is dormant phase. So in dormant phase the virus is idle and it gets activated based on certain actions or event. यानी कि इनिशियली वायरस हमारा बहुत आइडल रहेगा, वो जैसे ही उसको कोई पर्टिकुलर एक्शन या कोई इवेंट हमने ट्रिगर किया है वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा. लाइक द यूज़र टाइपिंग अ सर्टेन की, या हमने कोई पर्टिकुलर डेट और टाइम सिलेक्ट की, या हम उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे आ गए हैं, वी हैव रीच दैट पर्टिकुलर डेट एंड टाइम, दैन दैट पर्टिकुलर वायरस विल गेट activated. So this is the optional phase. It's not necessary that every virus will enter this phase. Second is the propagation phase. So in this phase a virus will copy itself and each copy start creating more copies of self and thus propagating. Propagation मतलब होता है फैलना. तो इस phase में वायरस क्या करता है, वायरस कॉपी कर लेगा अपने आप को और देन इट विल उसकी हर एक कॉपी एक एक कॉपी आगे क्रिएट करती जाएगी, एक चेन ऑफ वायरस क्रिएट होती जाएंगी और ये पूरा हमारा वायरस इस तरीके से प्रोपोगेट हो जाता है. सो दिस इज़ द प्रोपोगेशन फेज. नेक्स्ट इज़ द ट्रिगरिंग फेज.
डॉर्मेंट वायरस मूव्स इनटू दिस फेज व्हेन द एक्शन और इवेंट अकर. जैसे हमने डॉर्मेंट फेज में पढ़ा था कि वहाँ पे हमारा वायरस आइडल रहता है और वो एक्टिवेट कब होता है, जब वो कोई पर्टिकुलर एक्शन या इवेंट परफॉर्म होता है. जैसे ही वो एक्शन या इवेंट परफॉर्म होता है तो हमारा वायरस डॉर्मेंट फेज से ट्रिगरिंग फेज में आ जाता है. लास्ट इज द एग्जीक्यूशन फेज. This is the main phase where virus will infect the system, or we can say this is the actual work of the virus, which could be harmless, like it can display some kind of message on the screen, or it might destructive means it might delete some of the files on the disk. So these are the basic 4 phases of virus. Now talking about the types of viruses, there are multiple types of viruses. Like first is parasitic virus. So this is the most common form of virus. Such a virus attaches itself to executable files and keeps replicating. यानी कि ये बहुत ही कॉमन तरीके का वायरस है. ये बेसिकली ये वायरस अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं, यानी कि .txt जो फाइल्स होती हैं उनके साथ अपने आप को अटैच करता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है. कीप्स रेप्लिकेटिंग, दैट इट मीन्स इट विल क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. And whenever that infected file is executed, then virus will look for some other executable file to attach itself and spread. यानी कि जिस पर्टिकुलर exe फाइल में भी वायरस हमारा अटैच हुआ था, जैसे ही वो फाइल मेरी एग्जीक्यूट होगी वैसे ही ये वायरस किसी दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद इसी तरीके से ये स्प्रेड होता जाता है. सेकेंड इज मेमोरी रेसिडेंट वायरस. सो दिस टाइप ऑफ वायरस फर्स्ट अटैचेस इटसेल्फ टू द एरिया ऑफ द मेन मेमोरी. बेसिकली ये क्या करेगा, सिंस इट इज़ मेमोरी रेसिडेंट, ये सबसे पहले मेन मेमोरी में जाके अपने आप को अटैच करेगा एंड देन इट विल इन्फेक्ट एवरी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. उसके बाद मेन मेमोरी के थ्रू हमने जितने भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया है ये सारे उन प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देगा. नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस. सो दिस टाइप ऑफ वायरस विल इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्क. बेसिकली डिस्क के अंदर जो मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल्स होती हैं ये सबसे पहले उन पे जाके अटैच होता है और उसके बाद वहाँ से ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जितनी भी डिस्क होती है वो उन सारी डिस्क पे स्प्रेड हो जाएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बूट होता है. बूट सेक्टर वायरस इनिशियली हमारा बूट रिकॉर्ड में होगा, देन जैसे ही हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट किया वैसे ही क्या करेगा, ये पूरी डिस्क पे स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. दिस वायरस इज दैट इट कीप्स चेंजिंग ऑन इट्स सिग्नेचर. यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को हर बार चेंज कर लेता है, जिसी कारण हम इस पर्टिकुलर वायरस को डिटेक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड लास्ट इज मेटामॉर्फिक वायरस. सो जैसे कि पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना सिग्नेचर चेंज कर रहा था, सो इन एडिशन टू चेंजिंग इट्स सिग्नेचर दिस टाइप ऑफ वायरस कीप्स रीराइटिंग इटसेल्फ. यानी कि ये अपना कोड भी बार बार चेंज कर लेता है. पॉलीमॉर्फिक वायरस सिर्फ अपना सिग्नेचर चेंज कर रहा था, बट मेटामॉर्फिक वायरस विल ऑल्सो चेंज इट्स कोड. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट worms. So worms are also a kind of malwares similar to virus. So similar in concept to virus, a worm is actually different in implementation, little bit different. A virus modifies a program, that means it will first attach itself to the program and then it replicate itself. A worm however does not modify any program. वो किसी प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होगा, इंस्टेड वो अपनी कॉपीज़ बनाता जाएगा. इंस्टेड इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. बार बार अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज़ बनाएगा. द रेप्लिकेशन ग्रोज सो मच दैट अल्टीमेटली कंप्यूटर और द नेटवर्क जहाँ पे वर्म है हमारा, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या हॉल्ट हो जाता है. यानी कि वायरस तो हमारा किसी पर्टिकुलर फाइल से जाके अटैच हो रहा था, जब वो फाइल एग्जीक्यूट हो रही थी तब वो वायरस अपने आप को स्प्रेड कर रहा था. बट वर्म क्या करेगा, वर्म अपनी कॉपीज़ बनाता जाएगा, इतनी कॉपीज़ बना लेगा कि फाइनली हमारा सिस्टम क्या होगा, हॉल्ट हो जाएगा. सो द बेसिक पर्पज़ ऑफ वर्म अटैक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वायरस. वायरस का जो था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. वर्म अटैक्स अटेम्प्ट टू मेक द कंप्यूटर और द नेटवर्क अंडर अटैक अनयूजेबल. बेसिकली वायरस तो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा था, उसकी मल्टीपल फाइल्स को करप्ट कर रहा था, बट वर्म क्या करता है, जिस भी सिस्टम पे होता है या जिस नेटवर्क पे होता है, अल्टीमेटली ये चाहता है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम हॉल्ट हो जाए, इट शुड नॉट वर्क. सो अ वर्म डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन एंड इंस्टेड इट विल ओनली कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज. ये सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज़ करता रहता है. जैसे ये एग्जाम्पल है, इनिशियली मेरे पास एक वर्म का कोड था, एक कॉपी ने एक पर्टिकुलर जो हमारे पास वर्म का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसने 3 अपनी कॉपीज़ बनाई, देन हर एक पर्टिकुलर कॉपी ने अपनी 3 बनाई. तो इस तरीके से ये चेन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दैट फाइनली हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स.
So Trojan horse is like it is a hidden piece of code. So the purpose of Trojan horse is different, whereas the main purpose of virus is to make some sort of modification in the program or in the computer network. A Trojan horse will attempt to reveal confidential information to an attacker. यानी कि जैसे कि वायरस हमारे प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम की कॉपीज़ के साथ अटैच हो जाता था, उसके बाद एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ अटैच होके मल्टीपल एग्जीक्यूटिबल फाइल में अटैच होता जाता था, इन्फेक्ट करता जाता था फाइल को. वॉर्म्स अपनी खुद की कॉपीज़ बनाता जाता था ताकि हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाए. बट ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको रिवील करता है. इट विल ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन टू द अटैकर. So basically the name Trojan horse is given on the basis of the Greek soldier who hid inside a large hollow horse and which was pulled by the Troy citizens. और जब ट्रॉय के सिटीजन्स ने उस पर्टिकुलर हॉलो हॉर्स को अपने सिटी के अंदर लिया था, तो जितने भी सोल्जर्स थे उन लोगों ने बाद में उस पर्टिकुलर सिटी पे अटैक कर दिया था. तो सिमिलरली इज ट्रोजन हॉर्स. So Trojan horse will infiltrates your computer through a file that you download and open. हमने कोई भी पर्टिकुलर फाइल अगर डाउनलोड या ओपन करी, उसके थ्रू हमारा ट्रोजन हॉर्स आ जाएगा. वायरस की तरह अनलाइक वायरस वी कैन से मोस्ट ट्रोजन्स विल स्टे ऑन योर कंप्यूटर्स ओनली. वो सिर्फ आपके कंप्यूटर्स पे रहेंगी ताकि वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रिवील कर पाएँ अटैकर को. सो दे कैन कॉज डैमेज बट दे डू नॉट स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स. दूसरे कंप्यूटर्स पे स्प्रेड नहीं होंगे बट दे कैन डैमेज योर कंप्यूटर और कैन रिवील योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो ट्रोजन इज ऑल्सो अगेन अ पीस ऑफ मालवेयर दैट स्टेज इन वन प्लेस रैदर देन स्प्रेडिंग. बाकी जो हमने वायरस और वॉर्म्स पढ़े दे स्प्रेड बट ट्रोजन विल रिमेन इन योर सिस्टम ओनली. दिस इज एन एग्जाम्पल. यूज़र डज नॉट नो कि उसके सिस्टम में कोई ट्रोजन हॉर्स है. जैसे ही यूज़र ने अपना आईडी एंड पासवर्ड डाला, ट्रोजन हॉर्स ने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को फैच किया एंड इट जस्ट ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू द अटैकर. सो इस तरीके से हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. सो इन मोस्ट केसेस वी कैन से that spyware will install itself on your computer in the same way as Trojan horse does. जैसे कि हमने भी Trojan horse का पढ़ा था कि Trojan horse हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, सिमिलरली स्पाईवेयर भी हमारे Trojan horse की तरह हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं. देन स्पाईवेयर स्पाइज ऑन एवरीथिंग यू डू. मतलब स्पाई इन द सेंस इट विल कीप अ वॉच. हम जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इट विल कीप अ वॉच ऑन इट. लाइक इफ वी पे एनी काइंड ऑफ बिल्स ऑनलाइन, वी आर वॉचिंग एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन वीडियोज और वी आर यूजिंग Facebook. So it will just keep a spy on everything you do and then it compiles this information and send it to a database and then affects your web browsing. उसने इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर लिया, उसको डेटाबेस में उसने स्टोर कर लिया, देन आप जो ब्राउजिंग करते हैं उसको इफेक्ट करेगा. So depending on your preferences and your browsing history, the database will suggest promotional offers or other any kind of scams. So spyware can also be download and install virus on your computer or open any kind of pop-up menu while we are surfing on the web. So इस तरीके से हमारे स्पाईवेयर्स हमारे सिस्टम को या हमारे वी कैन से वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री को इन्फेक्ट कर सकते हैं. Next is anti-spyware. So anti-spyware is basically a type of software that is particularly designed to detect and remove unwanted spyware programs. जो हमारे स्पाईवेयर प्रोग्राम हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को जो इन्फेक्ट करते हैं, तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमारे इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो स्पाईवेयर्स जो भी हैं उनके प्रोग्राम्स को डिटेक्ट कर पाएँ. जैसे कि हमने पढ़ा था दैट स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ malware दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज. वी डोंट हैव एनी नॉलेज दैट पर्टिकुलर स्पाईवेयर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन अवर सिस्टम and it will generally collect all the information about our browsing or anything what we do on that system. So this can pose a security risk to the user, but more frequently we can say spyware will degrade the system performance. Since वो हमारे information को collect करेगा तो हमारे system की performance degrade होगी by taking up processing powers. जो भी हम processing powers use कर रहे हैं उसको वो ले सकता है. कोई particular और सॉफ्टवेयर एडिशनली वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, या वी कैन से कि यूज़र अगर कोई चीज़ ब्राउज़ कर रहा है तो उसकी यूज़र की जो भी एक्टिविटी है, जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है, उसको रीडायरेक्ट कर सकता है. तो ये जितनी भी डिसएडवांटेजेस हैं स्पाईवेयर के या जो भी वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, उनसे बचने के लिए वी यूज़ एंटी स्पाईवेयर.
So anti-spyware are also known as appyware. So these are simply like we can talk about antivirus. जैसे viruses के लिए हम antivirus use करते हैं, similarly spyware के लिए we'll use anti-spyware. Thank you.